Okay, good morning everyone. They are joining. We'll wait for 2 minutes and we'll start. Am I audible, right, Rahul? Yes. Yeah, okay, fine. So I'm not able to see spikes in my volume part. Because you have joined already, right? Yes, sir. But in waiting room, you are trying from another phone or laptop simultaneously, because in the waiting room it's showing that you are still joining. Okay, nevertheless. So what we have done yesterday was we have seen the load characteristics. Okay, I will just have a glance over it. Okay, per unit system was over. So the very shorter portion of your power system that comes in gate part, okay, was discussed yesterday. That was your load characteristics. Okay, that includes your average load, okay, maximum demand. Okay, these idonyms were discussed. So based on that, we'll do some questions on today classes. Okay, so we'll solve a few of the questions that will be. So I will be to solve or answer me out these. Okay. So the first very question that I will be giving you is okay. I have to keep this laptop on this. Okay, fine. So let's assume that you are given with yeah, we'll do this part. We have solved one kind of question. Okay, we have solved one kind of question in earlier classes. I think, see, you, no, not in your class, in that your junior classes we have solved. Okay, so that question was, okay, like if, okay, if load curve of power system, okay, is shown as below. Okay, then find the reserve capacity of that plant. Okay, stated uh, mm, stated plant
plant use or utilization factor. Okay, plant use factor as 0.8. Okay, this is a question, and question graph is like this. Okay, we have solved already. We have solved this while not you. Okay, fine. Okay. So this is your question. Okay. So tell me the answer. How we'll solve? We have to find this. We have to find reserve capacity of that plant. Okay. So this is your question. So how would we will be solving this? Anyone? Where is that guy? He joined today, but he is absent. Okay. Tell me, Joel, you were present tomorrow? Yes, sir, maximum. Yeah, pardon. Bolo. कोई नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो पढ़ चुके हो यार, कब पढ़ चुके हो? एक्सपोर्ट हुए सब में। Many of you have attended the gate also. Okay, tell me the process at least. Sir, maximum demand minus plant capacity. What? Result Maximum demand minus plant capacity. plant capacity. नहीं, उल्टा बोल रहे हो। प्लांट कैपेसिटी कम कैसे हो सकता है मैक्सिमम डिमांड से? प्लांट कैपेसिटी हमेशा बड़ा रहेगा, समझे? ओके वो कम नहीं हो सकता। सो ये तुम जो बताए वो होगा इस तरह, मैं बता रहा हूँ। It will be like, okay, reverse capacity is your plant capacity minus maximum demand, right? Now, तो ये दो का वैल्यू देखना है कहाँ दिया हुआ। ये वैल्यू हमें मिल जाएगा कैसे? दिस इज योर हाईएस्ट वैल्यू, यही एक पीक है, राइट? दिस एंटायर इज योर पीक, इससे ज्यादा तो नहीं दिख रहा लोड प्रोफाइल में, राइट? तो हमारा हो गया दैट मैक्सिमम डिमांड इट इज गिवन इज योर 60, राइट? अब बच्चा है प्लांट कैपेसिटी, राइट? प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालोगे? वी हैव प्लांट यूज फैक्टर और प्लांट ये do not be plant use factor. Okay, plant use factor नहीं होगा ये, तुम्हारा plant utilization, हाँ plant utilization factor, right. Plant utilization और use factor भी बोलते हैं, many of place you will get. Okay, generally you will don't confuse with this. Okay, use PUF जहाँ जहाँ पे दिया रहेगा, right? use और utilization दोनों रह सकता है, ठीक है? So we have got this part only, right? आ गया। We know this data, right? And we know this load curve, right? तो हमें क्या निकालना है? प्लांट कैपेसिटी।
सो प्लांट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर से, राइट? सर जीरो जा बोलो। सर एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ओके गुड। तो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी, राइट? इनटू टी होगा, क्योंकि ये जो एवरेज डिमांड आएगा फॉर अ टाइम पीरियड के लिए आएगा, राइट? ये मत भूलना कि प्लांट कैपेसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टी। अगर इसको मिस कर दोगे तो यू विल बी मेस्ड अप, ठीक है? तो आंसर्स गलत आ जाएंगे, राइट? Plant utilization factor is average demand for this particular time. Okay. वही plant capacity into time. Now, चलो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो पहले निकालना है एवरेज डिमांड, राइट? एवरेज डिमांड प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर एवरेज डिमांड बाय लोड कैपेसिटी, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज को, ये यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? एक और, इंस्टेड ऑफ एवरेज डिमांड इनटू टी, राइट? ये जो हम जनरेशन निकालेंगे पूरा, ये वाला एरिया देखो, ओके, दिस इज योर एंटायर लोड कर्व, ठीक है? लोड कर्व का प्रोफाइल है। सो इसका क्या होगा? ये दिस वुड बी योर एनर्जी जनरेटेड, राइट? दिस इज योर टोटल एनर्जी जनरेटेड। तो अब प्लांट यूनिट, ये जो फॉर्मूला तुम बताए हो, दैट इज नॉट फॉर द पीयूएफ, राइट? पीयूएफ नहीं है। यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यूटिलाइजेशन का मतलब है यूटिलाइज करना। अगर एक कमोडिटी तुम्हारे पास है दैट कैन बी यूज कंटिन्यूअसली, ठीक है? कंटिन्यूअसली तुम उसको यूज कर सकते हो फॉर लाइक, चलो मोबाइल फोन, ठीक है? मोबाइल फोन का तुम्हारा बैटरी सस्टेन कर सकता है कंटिन्यूअस रन में इज 8 hours, ओके? बट यू आर यूजिंग ओनली 6 hours, राइट? तो उसका प्लांट दैट यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ योर दैट मटेरियल वुड बी 6/8, राइट? ये होगा यूटिलाइजेशन फैक्टर का मतलब, राइट? और जो तुम बता रहे थे एवरेज डिमांड बाई मैक्सिमम डिमांड या फिर और कनेक्टेड है, दैट इज द ऑफ लोड फैक्टर, वो लोड फैक्टर कहा जाता है, ठीक है? एवरेज डिमांड बाई ये मैक्सिमम डिमांड, ओके, दैट इज द इक्वेशन फॉर लोड फैक्टर, ओके? विल उससे भी रिलेटेड हम लोग करेंगे। बट यूटिलाइजेशन फैक्टर का एक जनरल टर्म्स में समझो, तो नॉर्मल अगर जस्ट गूगल करोगे व्हाट इज प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर मत करना, ओके? जस्ट राइट यूटिलाइजेशन फैक्टर, सो दे विल गिव इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, ओके? बिकॉज वो होता है यूटिलाइजेशन का। जैसे हम जैसे एग्जांपल दिया कि यूजेस ऑफ योर बैटरी, कंटिन्यूअस यूज करोगे तो दे गिव ना इन मोबाइल, ओके, द बैटरी बैकअप दे गिव in video calling, okay, in normal phones, इंटरनेट, गेमिंग्स का सबका टाइम बताते हैं कि कितना में वो बैटरी लैप्स करेगा। सो ये कर, इसका भी ऐसे ही एक फंडा है कि अगर इसको प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी यही फंडा है। पहला है इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी जनरेटेड, ओके?
इसका है एनर्जी जनरेटेड for that particular time, okay, by full capacity it could generate. okay, इसका मोर प्रिसाइज वे में ही है, ठीक है। उसी को हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं बस एनर्जी जनरेटेड बाय प्लांट कैपेसिटी, मतलब सेम है, बस इसको हम एक नॉर्मल टर्म्स में पूरा एक्सप्लेन करके लिखे हैं फॉर लेमैन की अंडरस्टैंड, और ये है जनरली है, ठीक है। एनर्जी जनरेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड एंड कैपेसिटी, ओके, प्लांट कैपेसिटी और टोटल एनर्जी कैन बी और कुड बी जनरेटेड एट दैट पर्टिकुलर, ये है उसका प्लांट का ये, ओके। सो विल सी। अब क्या बचा हमारा PUF, राइट। So energy generated. So energy generated. What is the energy generated? Energy generated is your this area, entire area. So that is your area that should be calculated. तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर इसको मैं इरेज कर दूं ये सारी चीजों को, राइट, ये ग्राफ का जो भी एरिया है उसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द एनर्जी जनरेटेड, राइट। ये हो जाएगा PUF, मुझे पता है हमें क्या निकालनी है, प्लांट कैपेसिटी, ओके, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, प्लांट कैपेसिटी। सो दिस डाटा इज गिवन, दैट इज योर कितना है यहाँ पे 0.8, इट इज गिवन एज 0.8। एनर्जी जनरेटेड क्या होगा, इसका एरिया, तो यहाँ पे कितने ब्लॉक बनेंगे, यू विल गेट दिस ब्लॉक, you will get this block and you will get this block, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो हमारे पास 4 बनेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट एनर्जी जनरेटेड वुड बी योर, इट विल टेक बेस, जिसको हम बेस लोड भी बोलते हैं, 30 इंटू 24, ओके, ये हो गया हमारा उतना, देन प्लस दे आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, सो हाफ कितना हो जाएगा 30 और 8, ओके, 30 इंटू 8 प्लस हाफ 30 इंटू 8 प्लस ये क्या बचा 8 और ये कितना हो गया 16 होगा ना, तो ये भी 8 ही होगा, दैट इज योर 30 इंटू 8। सो व्हाट विल बी दिस सम अप कितना आएगा इसका टोटल आंसर 720 प्लस 120 plus 120 plus 240, so this will be around 1 2 3 4 ना, तो ये हो जाएगा 1200, right, fine, so you got 1200, ठीक है। so plant capacity into how much time it was 24, so it will be 24, so यहाँ पे हो जाएगा capacity equals to 1200 by 0.8 into 24, राइट। इसका आंसर क्या आएगा 62.5 62.5 मेगावाट, राइट। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है, ये रिवर्स कैपेसिटी क्या था, प्लांट कैपेसिटी माइनस ये, तो ये हो जाएगा 62.5 माइनस 60, दैट इज योर 2.5 मेगावाट, राइट। दिस इज द आंसर, बट इन प्रैक्टिकल सेंस दिस नेवर हैपन, इतना कम बैक रिजर्व में नहीं रखते हैं कभी भी, ओके। सो दिस इज योर वन क्वेश्चन, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना।
Let's go with another. एक दिया हुआ है. Okay, and industrial load. Okay, and industrial load pattern is given, okay, as 3000 kilowatt, 0.8 lakh for 12 hours and 2000 kilowatt with unity power factor for okay for 12 hours. So this is the question. और बोला गया इसमें find load factor. Okay, so tell me the solution. कैसे करेंगे इसको? जैसे विकास तुमने बताए थे that load factor is your average load by average demand by maximum demand, right? तो maximum demand हम इसमें भी फिर मिल जाएगा. ये और ये देखोगे तो कौन सा बड़ा है 3000, तो 3000 हमारा मैक्सिमम डिमांड हो गया. सो व्हाट इज योर एवरेज लोड या एवरेज डिमांड? एवरेज डिमांड हम लोग कैसे निकालेंगे? बताओ, ये डाटा में से एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? यूटिलिटी पावर फैक्टर दिया हुआ है. पावर फैक्टर का यूज होगा एवरेज डिमांड कैलकुलेट करने में? कुछ डाटा तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यूजलेस है, वो बस टाइम टेकिंग के लिए या फिर डिस्टरबेंस के लिए करते हैं? तुम्हें बस एवरेज डिमांड लगाना है, तुम्हें पता है ना. तो इसको अगर देखोगे, अगर इसको हम लोड कर्व में अगर हम बना दे तो देखो ये कैसे आएगा. इसका कुछ दिया नहीं है, ठीक है. तो ये लोड ड्यूरेशन कर्व में तुम समझ लो इसको, ये ऐसे है. ठीक है, दिस इज 24, दिस इज 12, ये 3 है, ये 2 है. तो अगर इस तरह समझोगे लाइक डेली लोड ड्यूरेशन कर्व का जैसा देखोगे तो ये होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है. तो 3 to 2, 12 घंटा के लिए चल रहा है, 12 घंटा के लिए चल रहा है. तो इसका हम लोग डायरेक्टली इसी से एवरेज डिमांड निकाल सकते हैं. कैसे? देखो. So 5 हाँ, कैसे कैसे बताओ. sir हाँ, sir 3000 plus 2000 divided by 24. जो बताए हो लिख देता हूँ. 3000 प्लस 2000 बाई 24. और ये लोड कर्व से तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. कैसा होगा? इसको एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हम कर सकते हैं इसको? ये 12 घंटे के लिए रन हुआ है, ये 12 घंटे के लिए रन हुआ है, ये पूरा 24 घंटे के लिए तो रन नहीं हुआ. ये सिर्फ 12 घंटे के लिए, ये सिर्फ 12 घंटे के लिए. अब आएगा, अब इसको करोगे 12 बाहर आ जाएगा तो ये बाई 2, राइट. तो क्या हो जाएगा? 3 to 5, so it will be 25. So it will be 25 by
3000, राइट। तुम्हारा एवरेज डिमांड आ जाएगा 2500 किलोवाट, राइट, फॉर द एंटायर 24 आवर्स के लिए एवरेज था तुम्हारा ये, क्योंकि 3000 के लिए 12 घंटा चला है, 2000 12 आवर्स के लिए चला है, राइट, तो उसको भी काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ये होगा, फाइन। इसका आंसर जो भी है 25/30 कितना होगा, 0.8, 10 बचा, 10 3 There is 3, okay, so this is your load factor, okay, ये भी एक हो गया। चलो नेक्स्ट, we'll see the next question. ये वाला टॉपिक का लास्ट है, इससे ज्यादा इसमें एक्सीड नहीं करेंगे। we'll start faults from next week, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग देखेंगे फॉल्ट्स पे, फिर एनालिसिस वगैरह पे जाऊंगा। So let's see the another question. The another question is okay, so maximum demand of a generating station is given as 600 megawatt, ठीक है। Maximum demand of generating station is given this. You have also provided with the load factor that is 80%, okay, and plant capacity factor that is your 60%, right? Now again we have to calculate your reserve capacity. So question में क्या पूछा है, reverse capacity, and these three data is given. So if a generating station is there whose maximum demand is your 600 megawatt, load factor is your 80%, that will be your 0.80, और ये होगा plant capacity factor है 0.60. So इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें ये फाइंड करना है RC, that is your capacity plant capacity minus maximum demand। तो हमें फिर से वहीं पे आ गए हम लोग, हमें क्या निकालना है, प्लांट कैपेसिटी। प्लांट कैपेसिटी कैसे निकलती है, तो प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा बताओ। एवरेज डिमांड निकालना होगा। गुड, तो कैसे होगा प्रोसेस, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। कैसे कैसे क्या बताए विकास। सर लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड। ओके, इससे क्या निकालोगे, एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड, तो एवरेज डिमांड निकालने के बाद क्या निकालोगे, कैपेसिटी। कैसे, सर एवरेज सर प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी होता है। तो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर कहाँ है हमारे पास, सर PCF। PC इज कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर अलग अलग चीज है, ये याद रखना, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक। एक टर्म है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, एक है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये कैपेसिटी के लिए करता है, ये यूटिलाइजेशन के लिए, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सो एक और तरीका से बताओ, चलो हमको ये अब पता चल गया है कि हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ये तो पता चल गया। ये निकलेगा तो हम ये निकाल सकते हैं, राइट, इज इट राइट। अब देखो जैसे तुम बताए जो प्रोसेस से, उसी से एक और तरीका निकलता है, दैट इज योर
प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है दैट इज योर plant utilization factor into load factor. Just keep it in this mind. Okay, this is very essential thing to be in mind. So plant capacity factor होती है that is equal to plant utilization factor into load factor, right? So हमें इसमें से क्या क्या पता है, हमें ये पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, plant utilization factor मिल जाएगा. So plant utilization factor would be PCF by so it will be 0.60 by 0.80. Okay, this is what, ये क्या होगा 6 by 8 हम कितना आएगा 0.75. ओके, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया ये, राइट. नाउ अब कैपेसिटी जैसे बोले थे कि यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर मिल जाएगी तो हम निकाल सकते हैं कैपेसिटी, राइट. वो कैसे, हाँ विकास बताओ. जब ये तुम्हें मिल जाएगा तो ये कैसे निकालोगे बोले थे, एवरेज डिमांड बाय प्लांट एवरेज डिमांड बाय प्लांट कैपेसिटी, राइट. प्लांट कैपेसिटी तो यहीं पे है. तो प्लांट कैपेसिटी का एक और तरीका मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है. प्लांट कैपेसिटी इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर थिंग दैट इज कॉमन फॉर ऑल इज योर मैक्सिमम डिमांड, वो रहेगा, राइट. इट वुड बी मैक्सिमम डिमांड बाय PUF, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर. या फिर इसको ही तुम अगर ठीक से देखोगे, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज योर मैक्सिमम डिमांड बाय कैपेसिटी. सो इसको अगर निकालोगे इट विल बी योर मैक्सिमम डिमांड कितना था 600 इंटू सॉरी 600 बाई 0.75 कितना आएगा आंसर, तो कैलकुलेट करूं, हाँ ये मेरा सी 800 800, राइट. तो हो गया 800 मेगावाट, राइट. So it is now the reverse capacity is your 800 minus 600, that is your 200 megawatt, right. अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ भी कैलकुलेट करने PUF कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. So you could directly calculate from capacity from the data what we have. अगर ये by PUF है तो ये capacity could be written as maximum demand into load factor by plant capacity factor. ठीक है, इससे भी हो सकता है, राइट. एज इसको देखोगे 600 into 80 by 60 it will give you 800. So this is also one equation directly you could solve. So these equation you could have to realize and you have to keep in mind, but these are the essential things that should be very prominent in your mind, because ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है जनरली, मेनी कॉम्पिटिशन्स में आता है, पर गेट में 1-2 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अटका ही देते हैं. और ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो 2 मार्क्स के जरूर दे देंगे. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना, या ऑप्शंस में आएंगे तो 1 मार्क्स में दे देंगे. मैक्सिमम टाइम ऑप्शंस में ही देते हैं तो अटका देते हैं 1 मार्क्स में. ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लो फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग एंड करेंगे इसको.
इसी में तो हो गया वो दोनों चीज, मैंने ऐड कर दिया था दोनों इसी में। और ये जो ये वाला जो पोर्शन में समझाना चाह रहा था पीसीएफ और यूटिलाइजेशन फैक्टर का डिफरेंस, नहीं चलो एक और बताता हूँ। समझो कि तुम्हें क्वेश्चंस में दिया हुआ है so in question if it is given that PCF दिया हुआ है तुम्हें, right, plant capacity factor is given here 60%, okay, and plant load factor is given as 80%, okay, so you have to find plant utilization factor। अभी बताया, just tell me fast क्या होगा, we don't have time, what will be the plant utilization factor, अभी just हम लोग किए हैं। उसी को मैं तोड़ के बस यहाँ पे लिखा हूँ। समझो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a generating station is having a plant capacity of 60, plant load factor is your 80%, you have to find plant utilization factor, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। और पावर स्टेशन का रेटिंग दे दिया है, चलो 400, the maximum demand is 400, okay? Sir, plant capacity factor by load factor. Plant capacity factor by load factor, परफेक्ट, ये होगा CF by load factor। कैपेसिटी फैक्टर कितना है 60, ये 80, 00 वही होगा 0.75, सेम डाटा में यूज करके दे दिया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कुड सॉल्व, ठीक है। बस जो अगर फॉर्मूलाज पता रहेंगे सब कुछ होते जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला इज द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी मेरा एक नेक्स्ट 10 बजे नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। चलो, Thank you, sir. बाय बाय।